ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ਟ ਵਿਨਾਇਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਚਿੱਤਰ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 16ਵਾਂ ਗਣਪਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਧਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਧੂਰ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੰਧੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਵਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ TV ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਇੰਦੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਨਿਪੁਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਜੀ, SN ਗਰੋਵਰ ਜੀ, श्याम लाल, सतीश वाला जी, किरण गर्ग, सुषमा गर्ग, मंजू गर्ग जी, राज रानी जी, अनीता सिंगला जी, मोहित अग्रवाल जी, राकेश बांसल जी, रजनी पुरबा जी, अमन लूथरा जी, देवकरण मित्तल जी, श्रीमती स्वर्ण लता और प्रवीण खुंगर जी। इन्होंने अज इस इन्होंने परिवारों ने भगवान गणेश
गणपति जी के चरणों के विच हाज़री लवा के ज्योति प्रचंड करके और भगवान गणपति जी का आशीर्वाद लिया। गणपति जी की कृपा इन्हां सबनावां दे उपर बनी रहे। जो कामना लेके मंदिर दे विच सब आए है, गणपति जी का आशीर्वाद लिया है। गणपति जी इन्हां दी मनोकामना नूं पूर्ण करन। और सारी मंदिर कमेटी इन्हां सब सज्जनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करती है जिन्हां ने इस यज्ञ दे विच अपना हिस्सा पाया है। बूंद बूंद बल जल भर ही तलावा। जो कुछ तुसी इस जगह ते सहयोग कर रहे हो मंदिर कमेटी का, ये थोड़ा एक एक पैसा जो भी है बड़े सोच समझ के सूझवान सज्जना वालों और बड़े अच्छे तरीके दे नाल इसनूं इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कुछ इस जगह ते मंदिर दे विच बन रहा है, जो कुछ हो रहा है, गणपति जी की मूर्ति, झूला, होर जो भी कुछ इस जगह ते आपां चांदी का तैयार किया समान, लड्डू गोपाल जी चांदी दे बन के आ जाणगे अगले जन्माष्टमी तक। उहदे वास्ते बहुत सारे मातावां दा, दानी सज्जनां दा सहयोग मिल चुकिया है। और छतर ते लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वास्ते होर भी कई सज्जन अपना मन बना चुके हैं इहदे विच योगदान पाउण दा। और जिन्हां ने भी योगदान पाउणा होवे, कथा तो बाद भी अपना सहयोग जन्म अष्टमी तो पहला पहला जदों मर्जी तुसी दे सकते हो, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो गणपति जी की कथा का आपां शुभारंभ करते हाँ। सूत जी महाराज ने ऋषियां नूं जिस वेले गणपति जी की कथा सुनाई कि गणपति जी का सीस एक वार तां भगवान शंकर जी के त्रिशूल के नाल कट्टिया गया, दूसरी वार शनि देवता की निगाह दे नाल दृष्टि पैंदिया सार ही उन्हां दा सीस धड़ दे नालों अलग होया। ये बड़ी कथा विचित्र सुन के ऋषियां ने सवाल किया सूत जी नूं कि प्रभु भगवान गणेश जी नूं एक दंत कहा जाता है। एक दंत का मतलब एक दंद वाले, गज मुख लग्या है, यानी कि हाथी का मुख है भगवान गणेश जी के धड़ दे उपर, और हाथी के दो दंद आपां नूं दिखाई दिंदे है। लेकिन गणेश जी महाराज नूं एक दंत क्यों कहा जाता है? गणेश जी का एक जिहड़ा दंद है वो किस जगह ते चला गया, और की कारण है कि गणेश जी नूं एक दंत कह के पुकारिया जाता है? सूत जी महाराज ऋषियां दे प्रश्न सुने। सूत जी महाराज दी अखां सी जड़ियां वो थोड़ियां नम हो गईयां प्रसन्नता दे नाल। हंझू किहड़े हुंदे है? परमात्मा भगवान स्वयं कह रहे कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन बहे जल लीरा। कि परमात्मा कहते मेरा भजन करन वेले आदमी, मेरी कथा करन वेले इंसान, मेरी कथा नूं सुनन वेले जदों उसनूं अपनी कोई सुध बुध नहीं रह जाती, दुनियादारी दे विच नहीं कि असी आप मंदिर दे विच बैठे हाँ, कथा पंडाल दे विच मंडप दे अंदर बैठे हाँ, पर साडा मन किते घर दे विच हुंदा है, किते दुकान दे उत्ते हुंदा है, किते किसी रिश्तेदार दे कोल हुंदा है, किते विआह शादी दे विच हुंदा है। उस तरह दे नाल नहीं। अपने आप नूं जदों आदमी भुल जावे कि मैं कित्थे बैठा हाँ, मैं किस हालत दे विच बैठा हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और शरीर की सुध बुध ना रहे और शरीर इन्ना क हल्का हो जावे कि पता ही ना लगे, और गद गद नयन बहे जल नीरा। जिस वेले प्रेम दे हंझू अखां दे विचों आउण लग जान और अपने आप की सुध बुध ना रहे, वो जिहड़ी सही अवस्था है भजन दी। जब तक तू अपने आप को खो नहीं सकता, अपने आप को खो नहीं सकता, तब तक तू उसका हो नहीं सकता। परमात्मा साडे दे कदों रिझदे है? जदों असीं अपने आप नूं भुल जाने हाँ। अपने आप नूं इंसान जदों मिटा दिंदा है ना, फिर उस तो बाद उस तो परमात्मा प्रगट हुंदी है, फिर मैं नहीं उस जगह ते रह जांदी। सूत जी महाराज ऋषियां नूं देख के बड़े प्रसन्न होए, प्रेम दे आंसू अखां दे विचों डिग्गण लग पे। कहन लगे ऋषि हो, तुसी बड़े भाग्यशाली हो, बड़े किस्मत वाले हो कि मैनूं तां कथावां दा पता ही है, पर तुसी मेरे तो कथा सुन रहे हो ना, इस दा मतलब थोड़ी कृपा मेरे उत्ते है, क्योंकि मैनूं भी इसका लाभ मिलेगा, मैनूं भी इसका फल मिलेगा। मेरे तो ज़्यादा धन्नवाद दे पात्र तुसी हो। असी कोई दान करते हैं, कोई भी चीज़, एक आदमी दान लेंदा है और एक आदमी दान करता है।
दोनों के विचों बड़ा कौन है? विचार करो, दान करन वाला बड़ा है या दान लैन वाला बड़ा है? दान लैन वाला बड़ा हुंदा है। क्यों? जे वो दान ना लवे, असी दाता किवें बनांगे? असी दानी किवें कहलावांगे? दानी असी तां ही कहलावांगे जे कोई दान लैन वाला मिलेगा, तां ही साडा यश होएगा, तां ही साडी कीर्ति होएगी। असी दानी कहलावांगे, दाता कहलावांगे। तो भाई जे लैन वाला ही ना होवे, ना असी दानी बन सकते हैं, ना असी दाता बन सकते हैं, ना असी दानवीर बन सकते हैं। इस करके जिन्हें सानू उच्चा चुक्या है, जिन्हें सानू ये खिताब दवाया है, जिसने सानू ये पदवी दवाई है, जिसने सानू होर तां कीता है, दाता कहाउण दा हक जिसने सानू दिता है, दानी बनन दा हक जिन्हें सानू दिता है, वो कौन है? वो दान लैन वाला है। असी नहीं बड़े, वो बड़ा है। सूत जी कह रहे कि ऋषियो, मैं बड़ा नहीं है कथा सुनाउण वाला, तुसी कथा सुनन वाले बड़े हो, क्योंकि थोड़ी वजह दे नाल ही सारा मेरे तो परमात्मा दा गुणगान होएगा और परमात्मा थोड़े नाल नाल मेरे उत्ते भी कृपा करनगे। ये हुंदा है बड़प्पन, दूसरे आदमी नूं सन्मान देना, दूसरे आदमी नूं सत्कार देना। सूत जी महाराज ने जदों ऋषियां नूं कथा सुनाउणी शुरू की और दस्या कि हे ऋषियो, एक दंत भगवान किवें बने। बहुत पुरातन समय की कथा है, बहुत पुराने समय की, कि एक बार राजा कार्तवीर्य चलते 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 जंगल दे विच शिकार खेलण लई चले गए। जिस वेले जंगल दे अंदर शिकार खेलण वास्ते गए और शिकार खेडते 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 उन्होंने रात पै गई। जिस वेले रात पै गई और रात पैंदियां सार ही राजा ने नदी दे तलाब दे किनारे दे उत्ते अपना आसन ला लिया। अपने नाल जिन्ने भी सैनिक सी उन्होंने नाल लेके बैठ गए। जिस वेले रात गुजर गई, सवेरे प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ के अपना संध्या वंदन पूजा पाठ जो सी नित नियम वो कीता। नित नियम करन तो बाद विचार किया कि इत्थे खान वास्ते भी कुछ नहीं मिलिया, कोई फल नहीं मिलिया, कुछ होर नहीं मिलिया, नाल जो कुछ लेके आए सी थोड़ा मोटा वो वैसे खत्म हो गया। तो हुण राजा नूं, राजा दी सैना नूं भुख ते प्यास इन्हां दोनों चीज़ां ने बड़ा परेशान किया। राजा चारों पासे विचार करन लगे कि जंगल दे अंदर असी आ गए हाँ, नज़दीक ना तो कोई बस्ती है, ना कोई नगर है, ना कोई पिंड है, और ना ही कोई सानू इस जगह ते घर बार दिसदा है कि असी जिथे जा सकीए, सानू जाके उस जगह ते भोजन मिले। तो राजा बड़े विचार करते 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 अगे जदों पहुँचे ना, थोड़ा जा जंगल दे अंदर गए। जंगल दे अंदर जाके उन्होंने की नज़र आया कि एक ऋषि महात्मा की कुटिया है। कुटिया नूं देख के, महात्मा जी के आश्रम नूं देख के ऋषि नूं कुछ तसल्ली हुई, ऋषि नूं कुछ, अपने राजा नूं कुछ तसल्ली हुई। राजा का मन कुछ प्रसन्न होया। कार्तवीर्य अगे पहुंचे, राजा ऋषि दे कोल, ऋषि नूं जाके प्रणाम किया। और ऋषि जमदग्नि जी ने देखा कि राजा मेरे कोले आया है, मेरे आश्रम दे विच आया है, मेरा अतिथि है। अतिथि देवो भव, ये मेरे वास्ते देवता है, राजा भी है, दोनों चीज़ां हो गई। एक तो राजा है और दूसरा अतिथि है। आसन के उत्ते बिठाया और आउण का कारण पूछया कि है राजन, तुसी इस जंगल के अंदर सुनसान बियावान के अंदर किवें आए और किस तरह के नाल तुसी मेरे आश्रम तक, मेरी कुटिया तक पहुँचे हो। ये सारा सुन के कार्तवीर्य राजा ऋषि जमदग्नि नूं कहन लगे, महाराज मैं अपनी सेना दे नाल शिकार खेलन वास्ते आया सी जंगल दे अंदर। जंगल दे अंदर चलदे 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 मैं बहुत दूर तक पहुँच गया। सारा दिन कल साडा बतीत हो गया। जो कुछ थोड़ा मोटा अन्न जल सी कोले वो सारा समाप्त हो गया। हुण रात सी कट्टी बड़े औखे, बड़े मुश्किल दे नाल। हुण सवेरे प्रातः काल तो जदों असीं उठे हाँ, सानू कोई चीज़ नहीं मिली खाण वास्ते, और असीं थोड़ी कुटिया देख के, थोड़ा आश्रम देख के इस जगह ते आए हाँ। राजा ने देखा कि भुखा प्यासा अतिथि वापस चला जावे
ये शोभा नहीं दिंदा गा। तो उन्होंने कहा राजन तुसी चिंता ना करो, मेरे कोले जो समान है, जो खाद्य पदार्थ, जो खान पीन का समान है ना, ये सब मैं थोड़ी सेवा दे विच हाजिर करदा और तुसी अपनी सेना नूं नाल ले आओ। राजा ने बड़ी खुशी जाहिर की कि ऋषि ने सानू वचन दे दिता है और मैं अपनी सेना नूं लैके आवां। राजा गए, जाके जिन्नी सेना सी, बहुत वड्डी गिनती दे विच सेना। जिस वेले राजा की सेना नूं आउंदे होए देखिया तो ऋषि भी घबरा गए कि मैं तो सोचा ही नहीं सी कि सेना इन्नी ज़्यादा होएगी। मैं तो सोचा सी कोई 5 7 10 जने होणगे, वध तो वध उन्हां नूं मैं भोजन करा देवांगा, पर ये तो राजा की सेना फौज बहुत बड़ी है। कोई गल नहीं। अंदर कामधेनु माता दे कोल गए, कामधेनु गऊ दे कोल जो आश्रम के अंदर वास कर रही सी, उसनूं जाके नमन किया, नमस्कार किया कि हे माता, हे कामधेनु, मेरे तो बहुत बड़ी एक भुल हो गई, गलती हो गई। मैनू विचार नहीं सी, मैं सोचा भी नहीं सी कि राजा शिकार खेडण वास्ते इन्नी ज़्यादा सेना नूं लैके आवेगा। मैं तो थोड़े जे आदमी समझा सी कि लैके राजा आया होएगा और मैं इसनूं भोजन करा देवांगा। माँ, मैं तो इसनूं वचन दे चुकिया कि मेरे आश्रम दे विच आके तुसीं भोजन करो, पर राजा की सेना तो बहुत ज़्यादा है। कामधेनु कहन लगी, बेटा जमदग्नि, तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं है, तेनू चिंता करन दी जरूरत नहीं। चाहे राजा दे लखां सैनिक आ जान, फिर भी मैं उन्होंने भोजन परोसांगी, मैं उन्होंने भोजन करावांगी, कोई इस जगह तो भुखा नहीं जाएगा। कामधेनु मां नूं नमन किया, नमस्कार की, चरण स्पर्श किए, परिक्रमा की, राजा दे कोल आ गए। राजा ने भी देखा कि मेरी इन्नी बड़ी सेना और ये ऋषि की कुटिया के अंदर तो कुछ भी नहीं। छोटी जी एक कुटिया है ऋषि की आश्रम के अंदर, और ਉਹਦੇ अंदर की पिया है, ਉਹਦੇ अंदर कोई समान भी है नहीं ज़्यादा। मेरी इन्नी बड़ी सेना नूं इस जगह पर मैं लैता आंधा, पर ये सैनिक भी मैनू मजाक करनगे कि किस जगह पर लै गए। इस जगह पर तो आप एक दाना दाना भी लईए प्रसाद तां भी नहीं आपां नूं मिलना गा। ऋषि बड़े अपने, राजा बड़ा व्याकुल हो गया। राजा दे चेहरे नूं पढ़ के महाराज जमदग्नि कहन लगे, राजा चिंता ना करो, किस चिंता दे विच डुबे हो, की फिक्र कर रहे हो। तुहाडी सैना नूं खाण वास्ते, पीण वास्ते जिस चीज़ की जरूरत है वो सारी इस जगह ते तुहानूं प्राप्त होएगी। जो इच्छा करोगे, थोड़ी मन चाही वस्तु तुहानूं मिलेगी, थोड़ी मनोकामना पूर्ण होवेगी। जिस तरह का पदार्थ तुसी कामना करोगे, जिस तरह का खान पीन तुसी चाहोगे, सात्विक सतोगुणी, तमोगुणी नहीं। इस जगह पर तुसी मांस कह दो, कुछ होर कह दो, उस तरह के नाल नहीं। सतोगुणी जो ऋषियों के कोल है वो तुहानूं सब खान पीन वास्ते मिलेगा। राजा ने अपनी सेना नूं आग्या दी। हज़ारां की गिनती के अंदर सेना सी, बहुत लंबी चौड़ी जगह के अंदर। वो सारे राजा के सैनिक अपनी पंक्ति लगा के बैठ गए। सारियां दे अगे सोहणियां खूबसूरत सुंदर पत्तलां आ गईयां, पत्तलां आ गईयां। और जो जो किस दे मन दे विच खाण दी इच्छा है ना, कोई सोचदा कि मैनूं इस जगह ते खीर मिल जावे, पूड़े मिल जाण, उहदी खीर पूड़े थाली दे विच आ जांदे पत्तल दे विच। कोई सोचदा कि मैनूं सब्जी तरह तरह की मिल जाए, वो सब्जी आ जाती। कोई सोचता कचौड़ी मिल जाए, कोई सोचता मैनूं बालूशाही मिल जाए। यानी जो जो मन दे विच उन्हां दे संकल्प है, उहिओ सारा समान उन्हां दी प्लेट दे विच, पत्तल दे विच सामने हाज़र हो जाता है। राजा की सेना ने जरूरत तो भी ज़्यादा भोजन कर लिया और विचार किया कि इस तरह का भोजन अज तक असी अपने जीवन दे विच नहीं किते कीता। इस तरह का खान पान का समान सानू किते राजा दे कोलों भी नहीं मिलिया जो अज सानू इस ऋषि के आश्रम दे विचों मिल रहा है। सारे सैनिक बड़े प्रसन्न होए, बड़े खुश होए। और राजा ने सारे सैनिकों को देखा जदों कि बड़े प्रसन्न है, अपने जिहड़ा खास मंत्री सी उसनूं बुलाया, नाल एक होर आदमी नूं बुलाया, दूसरे मंत्री नूं कि जाओ जाके सब तो पहला देख के आओ कि इन्ना तरह तरह का पकवान, ये तरह तरह का भोजन, ये तरह तरह का समान, ये किस जगह पर बन रहा है। हलवाई कित्थे लगे हुए हैं, भट्ठी कित्थे लगी हुई है, सारा कुछ जरा विचार करके आओ, देख के आओ, निरीक्षण करो, निगाह मारो चारों पासे। अवलोक्या सारे जाने जदों गए, 2-3 जाने
जाके चारों पासियां तो गेड़ा कढ़ के आ गए, महाराज कोई हलवाई नहीं इस जगह ते, कोई होर भट्ठी नहीं लगी हुई इस जगह ते, कुछ भी नहीं है। ऋषि की कुटिया के अंदर देखिया उस जगह ते थोड़ियां जिहियां समझां मतलब लकड़ियां पईयां हवन वास्ते, कुछ इस जगह ते तिल चौल जौ वो पए हुए है, जां अंदर कुशा रखिया हुई है, होर ऋषि का अपना दंड कमंडलू है, ऋषि के पाउण वाले वस्त्र है, होर महाराज इस जगह ते कुछ नहीं। विद्यार्थियों का कुछ थोड़ा बहुत समान रखा हुआ है, कोई इस जगह ते हलवाई नहीं, कोई भट्ठी नहीं, इस जगह ते कोई बहुत बड़े अंबार अन्न दे नहीं लगे हुए, और इस जगह ते खाण पीण वाली वस्तुओं का कोई ढेर नहीं लग्या होया। हाँ, इस ऋषि के आश्रम के अंदर एक गऊ खड़ी है, बड़ी खूबसूरत सुंदर गऊ है, और सारे उसनों माता जी माता जी माता जी, धेनुका माता, धेनु माँ कह के सारे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और ये सारिया चीज़ां उस जगह तो आ रही हैं जिस जगह ते गौ माता विराजमान है। यानी कि ये सारा जो भी कुछ आ रहा है, ਇਹਦਾ स्रोत की है? ਇਹਦਾ स्रोत है गऊ, काम तेनू। कि काम तेनू सारी कामनावां नूं पूरी करन वाली, काम तेनू गऊ दा पूजन करन दे नाल सब तरह के भंडार घर दे अंदर भरदे है। चाहे वो अन्न दे भंडार होण, चाहे धन दे भंडार होण, चाहे वस्त्र दे भंडार होण, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। काम तेनू की पूजा करन वाले नूं, माँ सरस्वती की पूजा करोगे विद्या मिलेगी, लक्ष्मी भगवती की पूजा करोगे तो धन मिलेगा, अन्नपूर्णा माता की पूजा करोगे खान पीन वालियां वस्तुआं प्राप्त होणगियां, विश्व देवां की पूजा करोगे उन्हां तो मिलण वाले चीज़ां प्राप्त होणगियां, अश्विनी कुमारां का पूजन होएगा तो उन्हां दे नाल निरोगता आएगी, पितरां का पूजन करोगे अगे वंश वधेगा, घर दे विचों बीमारी दूर होएगी। पर काम तेनू की पूजा करन दे नाल सारी कामनावां स्वयं पूरियां होंदियां। कोई इस तरह की कामना नहीं जिहड़ी साडी अधूरी रह जावे। तो मन दे विच विचार आया कि सारा कुछ एक काम तेनू तो मिल रहा है, तो राजा मेहमान बन के आया सी, अतिथि बन के आया सी। भोजन करन तो बाद राजा का मन बदल गया, राजा की नीयत बदल गई। राजा ने जदों नीयत बदल गई ना, तो जान तो पहला सारिया ने अपना जो भोजन कर लिया, राजा ऋषि के सामने जाके खड़े हो गए और खड़े होके कहन लगे कि हे ऋषिवर, ये थोड़े कोल जो काम तेनू गऊ है ना, थोड़े कम दी नहीं है, क्योंकि तुसी तां जंगल दे विच रहन वाले, तुसी तपस्वी महात्मा हो, थोनू इन्हां चीज़ां की जरूरत नहीं है। ये जिहड़ी गऊ है ना, ये तो मेरे वर्गे राजे महाराजे उन्हां दे घरां दे अंदर सोहनी लगती है, क्योंकि राजा ने हज़ारां दी गिनती दे विच लोकां दी पालना करनी है, राजा ने हज़ारां दी गिनती दे विच लोकां नूं अन्न देना है, किसी नूं धन देना है, किसी नूं वस्त्र देने है। ये जिहड़ी जरूरत इस दी तुहानू नहीं है, इहदी जरूरत मैनू है, और तुसी ये जिहड़ी काम तेनू गऊ है ना, ये तुसी मैनू दे दिओ। ऋषि चुप हो गए, जमदग्नि। जदों जमदग्नि चुप हो गए और शांत हो गए, विचार किया कि जदों मैं कुछ नहीं कहांगा, ये राजा अपने आप ही इस जगह तो चला जाएगा, मैनू ना करन दी जरूरत नहीं पेगी। समझदार वास्ते इशारा काफ़ी हुंदा है। जे आदमी इशारा नहीं समझदागा तो फिर उसने जुबान भी नहीं समझनी, उसने भाषा भी नहीं समझनी, उसने गल भी नहीं समझनी। राजा दे बुद्धि दे अंदर इको ही चल रहा कि मैं गऊ नूं किवें लवां। तो ऋषि ने जदों चुपचाप उस जगह ते बैठे रहे, दोबारा फिर राजा ने क्या कि ऋषिवर देखो, मैं थोड़े अगे बेनती करदा, मैं थोड़े अगे प्रार्थना कर रहा कि तुसी यह काम तेनू गऊ मैनू दे दिओ, और मैं इस नूं लैके अपने घर दे विच बड़ी प्रसन्नता दे नाल जावांगा, अपने घर दे अंदर लिजा के मैं सारी प्रजा की बड़ी पालना पोषणा करांगा इस दे नाल। फिर ऋषि कहन लगे, राजन तुसी अपने धर्म नूं ना त्यागो, अपना धर्म नहीं है थोड़ा, क्योंकि तुसी क्षत्रिय हो, तुसी राजा हो। राजा का धर्म की है, क्षत्रिय का धर्म की है। क्षत्रिय का धर्म मंगना नहीं है, उसका है दूसरों की पालना करना, किसी के उत्ते आने वाले संकट नूं कष्ट नूं टालना,
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਯਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ੀਵਰ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗਊ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਗ੍ਰਹਮ ਗੱਛ ਮਤ ਕੋਪਮ ਨਹੀਂ ਵਰਧਯ। ਐ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਤਿਥੀ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਨਿਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਏ, ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗਊ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਊ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਮਦਗਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐ ਵਤਸ, ਐ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਥਾ ਇਸ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਮ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਿਕ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ, ਅਸਤਰ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
जे ऋषि ने श्राप दे दिता तो अपना विनाश लाजमी है। और ऋषि दे कोल इन्नी कोई समर्था नहीं कि साड़ी सेना का हो मुकाबला कर सके। ऋषि दे कोल इन्नी ताकत नहीं कि वह साढ़े सामने खड़ा रह सके। इन्नी देर दे विच राजा ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की, अपने कुटुंब नूं, अपने परिवार नूं, अपने वंश वालियां नूं, जिन्ना खानदान सी राजा कार्तवीर्य दा और जिन्नी राजा दी सेना सी वो सारी इकट्ठी कर लई। जमदग्नि ऋषि जी दे आश्रम नूं जाके चारों पासियां तो घेर लिया। जिस वेले चारों पासियां तो घेरिया, जमदग्नि ऋषि नूं संभलन दा कोई मौका भी नहीं दिता। जमदग्नि ऋषि नूं तैयार होने का मौका भी नहीं दिता। जल्दी जल्दी जमदग्नि ऋषि के हाथ दे विच धनुष्यबाण आए और धनुष्यबाण लैके उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी बाण मार मार के। जिवें महाभारत के सीरीयल के अंदर तुसीं देखिया होना, किते कोई योद्धा बाणा दे नाल एक दीवार तैयार कर देंदे, किते कोई छत पा देंदे, किते कुछ कर देंदे, या विरोध यानी कि रुकावट खड़ी कर देंदे। थोड़े जे समय दे विच राजा दी सेना आई। राजा दी सेना ने आके सारे जिन्ने भी ऋषि वालों बाणा दे नाल दीवार तैयार की गई सी उसनूं तहस नहस कर दिता। ऋषि दे नाल युद्ध करते करते थोड़े जे समय दे विच ही ऋषि जमदग्नि जी का उन्होंने वध कर दिता, हत्या कर दी। जिस वेले जमदग्नि ऋषि की हत्या हुई, जमदग्नि ऋषि ने अपने प्राण त्यागद्या सार ही कामधेनु माता नूं याद किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिते। जिस वेले कामधेनु ने देखा कि ऋषि जमदग्नि देवलोक नूं चले गए अपना शरीर त्याग के, और कामधेनु गऊ सी जो गोलोक धाम दे अंदर जिन्हां दी कथा आई सी कि राधा रानी दे नाल प्रभु किस जगह ते विराजमान हुंदे है। राधा रानी नूं जिस जगह तो भगवान ने प्रगट किया सी उस जगह का नाम है गोलोक धाम। उस गोलोक धाम दे अंदर कामधेनु गऊ तां गऊआं दे अंदर जाके समा गई, उन्हां दे अंदर जाके विराजमान होगी भगवान नारायण जी नूं प्रणाम करते हुए। ऋषि जमदग्नि का देहांत हो गया और जदों आश्रम दे विच चारों पासे जाके लभन लग पे, तलाशी ली गई यानी कि आश्रम की, तो उहदे अंदर कामधेनु मिली नहीं। कार्तवीर्य राजा ने क्या कि जाओ जल्दी जल्दी जंगल के अंदर लभो, तलाश करो ये कामधेनु किस जगह ते चली गई। पर सारी सेना चारों पासे दौड़ी, कहने लगी महाराज चारों पासे तो अपनी सेना ने घेरा पाया होया, उहदे जाण दा कोई सवाल ही नहीं किस पासे चली गई। कामधेनु गऊ नूं किसी पासे कोई लैके नहीं गयागा। जदों कामधेनु गऊ उस जगह तो नहीं मिली क्योंकि वह देवलोक नूं चली गई, गोलोक धाम नूं चली गई, और राजा अपना मत्था फड़ के बैठ गया कि कामधेनु गऊ भी नहीं मिली और मेरे सिर के उत्ते ऋषि की हत्या का कलंक भी लग गया और मैं ब्रह्म हत्या का पाप उसनूं भी कमा लिया। राजा पश्चाताप करते हुए और वापस अपने नगर दे विच आ गए, उदास होके कि जिस काम वास्ते मैं गया सी मेरा कार्य तां पूरा होया नहीं। और अपने नगर दे विच जाके रहन लग पे। जदों राजा तां इस जगह तो सारा कांड करके ऋषि की हत्या करके अपने नगर दे अंदर चले गए ना, तां इधरों की होया, परशुराम जी की माता रेणुका जी, रेणुका जी ने अपने बेटे नूं पुकारिया कि हे राम तू किस जगह ते चलिया गया। ऐ राम तेरे पिता की हत्या करके राजा कार्तवीर्य इस आश्रम दे विच तबाही मचाउंदे हुए वापस चलिया गया है, तू किस जगह ते है बेटा। 21 बार उसने अपने बेटे नूं याद किया, परशुराम जी नूं। इक्की बार जदों याद किया तो परशुराम जी महाराज समाधि के अंदर बैठे हुए सी। समाधि के अंदर बैठे 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 उन्होंने मन व्याकुल हो गया और धीरे धीरे की होया उन्होंने समाधि खुली। देखा कि मेरी माँ मैनू याद कर रही है, मेरी माँ के उत्ते कोई कष्ट आया।
ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਕਾਰਤਵੀਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਮ ਤੈਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੌਕਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤੇਸ਼ਟੀ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, क्योंकि ये बड़ा प्रतापी, बड़ा बलवान, बड़ा राजा उदंड है और तू ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है। आपस में युद्ध तुसी कर नहीं सकोगे और तेरा कोई नुकसान होवे मैं नहीं चाहती। और मैं तो हुण जा रही हाँ और तू भी अपने पिता का कर्म करके अपने तप दे विच, जप दे विच, अपनी साधना दे विच ही लग जावी। अपने मन दे विचों वैर नूं भुला दे। ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦਗਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਐ ਰਾਮ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਤस्य ਹੀ ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उस दा विनाश लाजमी है। प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ बनती है ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ कि जिन्ने भी दुनिया के जीव है तुसी उसनों अपने नाल ले आना है। तो मृत्यु देव कहन लगे कि है प्रभु मैं किसी के पिता नूं, किसी के बेटे नूं, किसी के भाई नूं, किसी की भैन नूं, किसी की पत्नी नूं, किसी के सखे संबंधी नूं मैं जदों लैके आवांगी तो लोग मैनूं माड़ा क्या करनगे। सब लोग मेरी निंदा करनगे, मेरा अपमान करनगे, मैनूं अपशब्द कहणगे। तो परमात्मा कहन लगे मृत्यु तैनूं चिंता करन दी कोई जरूरत नहीं, तैनू कोई बुरा नहीं कहेगा। क्यों महाराज? कहने लगे तैनू कोई बुरा नहीं कहेगा, मैं तेरे नाल कारण पैदा करदा हाँ। तो भगवान ने नाल कारण पैदा किए। आपां अज कोई नहीं कहते कि इसकी मृत्यु आई सी, इस नूं लैके चली गई। असी कहने कि बीमार हो गया, इलाज सही नहीं होया, एक्सीडेंट हो गया, पानी दे विच चलिया गया, अग दे विच जल गया, करंट लग गया, हृदय गति रुक गई, कुछ भी हो गया। तो कारण चाहे कोई भी होवे, भृगु जी महाराज कह रहे जाना दुनिया दे विचों सब ने है। तेरे पिता जी दे जाण दा कारण ये राजा कार्तवीर्य सी। और बेटा तुसी अपना जिहड़ा कर्म है इसनूं पूरी तरह दे नाल निभाओ, अपने पिता दे वास्ते सारा कर्म उसनूं करो। परशुराम जी कहन लगे देखो दादा श्री, जो प्राणी
ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ, ਗਰਲ ਦਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੜਵੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਤਾਈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। 21 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਵੰਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, 21 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 21 ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਵਰਮ ਰੋਹੀ, ਐ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਐ ਰਾਮ, ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋ
प्रभु मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, जो मैं प्रतिज्ञा कीती है तुसी जानदे हो, मैनू उस प्रतिज्ञा दे पूरा करन वास्ते ताकत दिओ, मैनू तुसी आशीर्वाद दिओ। तो भगवान महादेव जी कहन लगे बेटा ठीक है। उन्होंने एक हथियार दिता जिसका नाम है परशु, परसा, जिसनों आपां कुहाड़ी भी कहने, कुल्हाड़ी कहने पंजाबी दे विच। वो परसा दे दिता। पहले इन्हां दा नाम सी कला राम, और उस दिन तो बाद नाम होया परशुराम, क्योंकि भगवान राम जी ने भी कहा ना, राम मात्र लघु नाम हमारा। जिस वे सीता स्वयंवर दे विच दोनों इकट्ठे होए, परशुराम जी अपने रूप दे विच आ गए ना, तो राम जी ने कहा कि महाराज मेरा नाम तो राम है, मैं तो छोटा हाँ, और परश सहित बड़ो नाम तिहारो। परश दे नाल थोड़ा नाम बड़ा है, थोड़े हाथ च हमेशा परसा है, और लोग थोनों परशुराम कह के पुकारते हैं। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होके वो जड़ा शस्त्र परसा वो भगवान परशुराम जी नूं दिता। उस दिन तो बाद इन्हां दा नाम राम तो परशुराम होया। और आके सब तो पहले गोदावरी नदी के किनारे ते भगवान का उन्होंने ध्यान किया। उस तो बाद गोदावरी नदी तो चलते हुए राजा की जिस जगह ते राजधानी सी, उस जगह ते नर्मदा नदी जो गुजरात के अंदर है, उस जगह ते पहुँचे। नर्मदा नदी के किनारे ते जाके अपने कुछ सैनिकों नूं, अपने मित्रां नूं, दोस्तां नूं, अपने परिवार वालियां नूं, अपने विद्यार्थियों नूं, अपने शिष्यां नूं बुलाया परशुराम जी ने, और उस बोर्ड के वृक्ष के हेठां बैठ गए। एक मुनि नूं, महात्मा नूं भेजिया कि जाओ जाके राजा कार्तवीर्य नूं एक संदेशा दे दिओ कि परशुराम युद्ध वास्ते तुहानूं बुला रहे है, तुसीं उन्हां दे पिता की हत्या की है, और अज अपने पिता की हत्या का बदला लैण वास्ते परशुराम आए है। ऐ राजन, तुसीं अपनी सेना नूं इकट्ठी कर लो, अपने भाई बंधुआं नूं इकट्ठे कर लो, अपने रिश्तेदारां नूं इकट्ठे कर लो, किते थोड़े मन दे विच ये ना रह जावे कि मैं कल्ला सी। मैं तुहानूं सारिआं नूं खत्म करन दी प्रतिज्ञा कीती है। भगवान शिव ने मैनूं वचन दिता है, वरदान भी दे दिता है, और मैं 21 बार थोड़े वंश नूं खत्म करना है। जिस जिस नूं तुसीं बुलाउणा है, जिवें जिवें बुलाउणा है, जिस जिस जगह तो बुलाउणा है, उस नूं बुला लो और आके मेरे नाल युद्ध करो। जिस वेले महात्मा एक ऋषि राजा कार्तवीर्य के दरबार के अंदर पहुँचे, कार्तवीर्य जी ने नमन किया, ऋषि नूं प्रणाम किया और पूछा कि महाराज तुसी किस जगह तो आए हो, कौन हो, थोड़े आउण दा कारण की है। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, तुसी महर्षि जमदग्नि का वध किया है, निर्दोष यमदग्नि ऋषि नूं मारिया है, और उन्हां दे बेटे परशुराम जी तुहानूं युद्ध वास्ते ललकार रहे है। और उन्होंने कहा कि थोड़े मन दे विच कोई इच्छा न रह जावे, अपनी इच्छा नूं पूरा करन वास्ते अपनी ताकत लैके, अपनी सेना लैके, अपना बल लैके और मेरे नाल आके युद्ध करो। ऋषि दे वचन सुन के कार्तवीर्य कहन लगे कि ए ऋषिवर, तुसीं संदेशा लैके तो आए हो, ठीक है, पर ब्राह्मण ते क्षत्री इन्हां दा युद्ध शोभा नहीं दिंदा गा। मैं ब्राह्मण दे नाल युद्ध किवें करांगा, ये तो मर्यादा तो रहित है। तो महात्मा जी ने, ऋषि ने उत्तर दिता कि राजन, सब तो पहले ब्राह्मण की हत्या करके युद्ध की शुरुआत तुसीं कीती है। उस ऋषि महात्मा ने तो थोड़ा सत्कार किया सी, भुखिया नूं अन्न दिता सी, प्यासिया नूं जल दिता सी, पर तुसीं उस अन्न जल के बदले दे विच उस ऋषि नूं मौत दिती, निहत्थे ऋषि नूं तुसीं मारिया। हुण उसका शुरुआत हो चुकिया है, युद्ध का प्रारंभ हो चुकिया है, आओ हुण तुसीं आके युद्ध करो। इस तो अगे जो कुछ करना थोड़ी मर्जी, मैं परशुराम जी का संदेशा तुहानूं दे के जा रहा। परशुराम जी के संदेशे नूं सुन के अपनी राणी दे नाल जाके सलाह मशवरा किया कि आपां नूं की करना चाहिए। तो राणी ने कहा कि देखो, परशुराम दे नाल युद्ध करना थोड़े वस दा नहीं। फिर भगवान शंकर जी तो उसनूं वचन मिल चुकिया है, वरदान मिल चुकिया है, और परशुराम कल्ले नहीं है, उन्हां दे नाल महादेव की ताकत है।
फिर राजा कहन लगे कि देखो जे तो मैं युद्ध नहीं करन जांदा तां भी मेरी लोकां दे विच निंदिया होएगी, लोग मैनू अपमानित करनगे, बुरा कहणगे और लोग मैनू पता नहीं किहड़े किहड़े शब्द कहणगे। और जे मैं युद्ध करन वास्ते जाना तो राणी तू खुश नहीं है। देखो जाना तो दुनिया दे विचों है ही, तो मैं अपने धर्म की पालना करते हुए, क्षत्रिय धर्म की पालना करते हुए उस जगह पर जाके युद्ध करांगा। पहुँचे परशुराम जी के सामने बहुत बड़ी सेना लैके, और परशुराम जी नूं सामने जो देखा शस्त्र अस्त्र फड़े हुए, और उन्होंने अपने राज धर्म की पालना करते हुए जाके परशुराम नूं नमस्कार किया, प्रणाम किया। और परशुराम कहन लगे राजन तेरा कल्याण हो, तेरा भला होवे, मरण तो बाद तेनू स्वर्ग मिले। आशीर्वाद दे दिता। परशुराम जी ने अपना धर्म उसनूं भी निभाया। परशुराम जी सामने अपना धनुष्बाण लैके खड़े है। राजा अपनी बहुत बड़ी सेना के नाल रथ के उत्ते, कोई हाथी के उत्ते, घोड़ियां के उपर चतुरंगनी सेना लैके राजा परशुराम जी के नाल युद्ध कर रहे हैं। परशुराम जी के शिष्य, परशुराम जी के नाल आए हुए उन्हों के मित्र गण, वो भी सारे युद्ध करन लग पे। कुछ ही समय दे विच की होया, देखते देखते बड़ा घमासान, बड़ा भयानक युद्ध होया, और परशुराम जी की जिहड़ी सेना सी वो कुछ पिछे हटन लग पई। युद्ध चलता रहा कई दिनों तक। अंत दे विच परशुराम जी महाराज के उत्ते महर्षि दत्तात्रेय जी का दिता होया एक अस्त्र चला दिता। महर्षि दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य नूं खुश होकर एक ब्रह्मास्त्र दिता सी। वो अस्त्र चलाया। जिस वेले अस्त्र भगवान परशुराम जी दे लग्या, परशुराम जी बेहोश होकर डिग पे, और राजा उन्होंने कोल खड़ा हो गया, विचार कर रहा कि हुण उठण, मैं युद्ध करा जावा, वापस चला जावा। कुछ देर बाद फिर परशुराम जी महाराज नूं होश आ गई, होश आ गई, और राजा दे नाल फिर उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। बार बार अपने अस्त्र शस्त्र राजा चलाउंदा है। परशुराम जी सारे शस्त्र अस्त्र जिहड़े उन्होंने निरस्त कर देंदे है, नष्ट कर देंदे है। चलते चलते राजा की जिन्नी सेना सी सारी सेना नूं परशुराम जी ने खत्म कर दिता, और कल्ला राजा रह गया। और राजा के उपर परशुराम जी ने प्रहार किया, और सब नावां दे देखते देखते उस राजा कार्तवीर्य का परशुराम जी महाराज ने वध कर दिता, उसनूं खत्म कर दिता। जिस वेले राजा दे मार ए जाण दी समाचार खबर सारिਆਂ ਨੂੰ मिली, ਜਿਹੜੇ बचे हुए थोड़े बहुत कोई सैनिक सी वो भी अपनी अपनी जगह नूं भज गए। 21 वार वो सारे जने बार 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 प्रयास करते हैं, और जदों फिर बड़े हो जाते हैं, बच्चे है उन्होंने परशुराम जी छड्ड दिंदे है। वो बच्चे जदों बड़े होके फिर परशुराम जी के सामने आउंदे है अपने पितरां दा बदला लैण वास्ते, परशुराम जी फिर उन्होंने खत्म कर दिंदे। इस तरह के नाल 21 वार अपनी प्रतिज्ञा नूं पूरा किया। 21 वार उन्हां दुष्ट राजावां दा संहार किया परशुराम जी ने, जिहड़े अन्याय कर रहे सी, जिहड़े बेइंसाफी कर रहे सी, जिहड़े ऋषि महात्मा धर्म स्थान इन्हां दी संपत्ति दे उत्ते निगाह रखते सी, जिहड़े गऊआं तक दी निगाह रखते सी कि इन्हां नूं असीं किवें खो के ले जाइए, असीं जबरदस्ती लैके जाइए। इस तरह के 21 राजा सी जिहड़े 21 वार उन्हां दा विनाश किया परशुराम जी ने। अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो प्रसंग चल रहा सी कि भगवान गणेश जी एक दंत क्यों हुए। 21 बार प्रतिज्ञा पूरी करके जल्दी 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 महादेव जी नूं समाचार देने वास्ते कि प्रभु थोड़ा धन्यवाद है, मैं थोड़ी कृपा दे नाल अपना संकल्प पूरा कर लिया, थोड़ी कृपा दे नाल मेरा कार्य सिद्ध हो गया, थोड़ी कृपा दे नाल मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जिस वेले पहुँचे तो भगवान माँ पार्वती दे नाल अपने महल के अंदर विराजमान सी भोलेनाथ। गणेश जी महाराज ने रोक दिता और कहने लगे कि परशुराम भैया हजे तुसी अंदर नहीं जा सकते जिन्ना चिर पिता जी की आग्ञा नहीं मिलती। तो परशुराम जी बड़ी तेजी दे विच सी, बड़ी काली दे विच सी, जिवें आपां भी कई बार होने कि जिन्नी जल्दी हो सके असीं ये खबर दईए, अपनी खबर सुनाइए। तो परशुराम जी दे नाल गणेश जी महाराज जी का युद्ध होने लग पिया। गणपति जी महाराज के नाल युद्ध करते करते परशुराम जी ने बड़ा समा व्यतीत कर दिता। गणेश जी महाराज ने परशुराम जी नूं अपनी सुंड के अंदर बन लिया और सुंड बहुत लंबी कर दी, विस्तार कर दिता सुंड का।
किते समुद्र के अंदर सुट देंदे परशुराम जी नूं, फिर उस जगह तो कढ़ लेंदे, फिर पहाड़ की चोटी ते ले आउंदे, फिर किसी वन दे विच सुट देंदे है, फिर किसी जगह ते सुट देंदे। यानी गणेश जी उहदे नाल लीला करदे 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 बहुत सारा समा बतीत कर दिता। जिस वेले बतीत कर दिता तो परशुराम जी महाराज नूं बड़ा क्रोध आ गया कि मैं तो महादेव दे कोल जाना है और गणेश ये मेरे रास्ते दे अंदर रुकावट है। भगवान शिव जी का दिता होया जिहड़ा परसा सी ना, अमोघ परस सी। वो अमोघ का मतलब जिहड़ा किते खाली नहीं जाता, जिहड़ा प्रहार किस दा वार किते बेकार नहीं जाता गा। तो भगवान परशुराम जी ने अपना जिहड़ा परसा सी दूर तो चला के मारिया गणेश जी महाराज दे उपर। गणेश जी महाराज ने देखा कि मैं परसे का जे सन्मान नहीं करता, जे परसा बेकार चलिया गया तो पिता जी का दिता होया वचन बेकार चलिया जाएगा। तो महाराज नूं होर बहुत सारा विचार करन तो बाद गणेश जी महाराज ने अपना जिहड़ा खब्बा दंद सी ये सामने कर दिता। जिस वेले खब्बा दंद भगवान गणेश जी ने अपना सामने कर दिता तो परसे दे नाल जिहड़ा खब्बा दंद सी भगवान गणेश जी महाराज का वह जड़ दे विचों कट्टिया गया। जिस वेले जड़ दे विचों कट्टिया गया बहुत भयानक आवाज़ आई, बड़ा जोर दे नाल उस जगह ते शोर होया और गणेश जी के मुख दे विचों लहू जा रहा है। इन्ने चिर दे विच माँ पार्वती भवानी महादेव सारी सैनिक वो भी इकट्ठे हो गए, चारों पासे हाहाकार मचिया। भगवती उमा क्रोध दे विच आके परशुराम जी नूं शाप देने वास्ते तैयार हुई। महादेव कहन लगे रुको देवी, नहीं, इन्होंने कोई अनर्थ नहीं किया। शास्त्रां दे अंदर गणेश जी नूं एक दंत कह के पुकारिया गया है। एक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। हाथी दे वैसे 4 दंद हुंदे, 2 दिखाने वास्ते और 2 अंदर जिहड़े आपां नूं नज़र नहीं आउंदे। तां गणेश जी नूं की कहा गया? एक दंत। एक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। एक दंत नजर आएगा, एक दंत दयावंत। और गणेश जी महाराज ये रिद्धि सिद्धियां दे स्वामी है। माता पार्वती नूं भगवान कह रहे हैं कि इन्हां दे उपर किसी तरह का कोई असर नहीं। वेदां दे विच जिहड़ा इन्हां दा नाम उच्चारण किया गया सी, अज तो बाद वो नाम पूर्ण हो गया। जे इन्हां दे 2 ही दंद रहिंदे तां एक दंत जिहड़ा नाम सी इन्हां दा वो निरथक हो जाना सी। गणेश जी दे खब्बे दंद नूं परशुराम जी महाराज ने अपने परस दे नाल खत्म किया और गणेश जी महाराज का नाम होया एक दंत। तो एक दंत महाराज जी की जो कोई पुरानी कथा नूं सुनते है, जो कुछ सुनाते है, अपने बंधन पाप इन्हां सब चीज़ों तो मुक्त होकर गणेश जी महाराज की कृपा नूं प्राप्त करते हैं। और सूत जी महाराज ऋषियों नूं दस रहे कि हे ऋषियों, किस तरह के नाल गणेश जी महाराज एक दंत होए। एक दंत होने का यह प्रसंग ऋषि मुनि महात्मावां ने जदों सुनिया तो सूत जी नूं धन्यवाद देन लगे कि महाराज ये बड़ी विचित्र कथा, क्योंकि भगवान गणेश जी सानू सन्मान करना सिखाउंदे है, सानू सत्कार करना सिखाउंदे है कि किसी की बनाई हुई जिहड़ी मर्यादा है ना उसका किते उल्लंघन ना करो। राजा वास्ते मर्यादा है प्रजा की पालना करना, पर राजा ही जो खोण वास्ते मारन वास्ते प्रजा नूं तैयार हो जाए तो उस राजा का भी विनाश हुंदा है। राजा नूं अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। किसी महाराज का किसी देवता का दिता होया वचन उसनूं किते भी झूठा ना होण दिओ। उहदे वास्ते अगर थोड़ा कोई नुकसान भी हुंदा तां भी कोई चिंता नहीं। तो गणेश जी महाराज ने अपने दंद की कुर्बानी दे के बलि दे के भगवान महादेव जी के परसे का सन्मान किया। तो सानू भी साडे बुजुर्गों के सन्मान वास्ते अगर कोई थोड़ा मोटा नुकसान हुंदा होवे किसी भी तरह का तो उसनूं झल लेना चाहिए है। ये सानू गणेश जी महाराज की कथावां शिक्षा दिंदियां है। तो कल नूं ठीक समय सर आके सब गणपति महाराज जी का ज्योति प्रचंड का जो समय है, पूजन का जो समय है, सायकाल 3-3:15 बजे का है। और सब ज्योति प्रचंड दे विच पहुँच के अपनी श्रद्धा अनुसार ज्योति प्रचंड करके मंदिर कमेटी का जो नियम है उन्होंने नियमों के मुताबिक सन्मान सत्कार इस चीज़ को प्राप्त करो और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लवो। 2 दिन अपने कोल है। तीसरे दिन शुक्रवार शोभा यात्रा कढ़ते हुए
ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਇੰਕਾਲ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਰਜਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ, ਗਣਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ। ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਪਰਸੋਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਭਜਨ ਬੋਲੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ 2 ਭਜਨ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ। 2 ਭਜਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। गणपति महाराज की जय। सजा दो घर को गुल